हाय एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम आपको दिखाएंगे धान की खेती किस तरह किया जाता है। अभी हम आए हैं वेस्ट बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट विलेज बड़ा लच्छीपुर में। आप चारों ओर देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ धान की खेती है। मैं कैमरा पर्सन अरिजीत को बताना चाहूँगा, आप एक बार चारों ओर दिखाएं। चारों ओर धान की खेती है, आप देख सकते हैं चारों ओर धान की खेत है और बीच में जो इसे बंगाली लैंग्वेज में आल कहा जाता है। ठीक है, चारों ओर देख रहे हैं, बीच में पेड़ है और हरियाली है। चारों ओर सिर्फ धान की खेती है। इधर देखो पानी भी बहुत ज़्यादा कल बारिश हुई है और धान की खेती के लिए आप जानते हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस का रिक्वायरमेंट है। और अपने सामने देख रहे हैं नर्सरी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह धान्यारोपण किया जाता है। ठीक है, ये धान के छोटे छोटे पौधे हैं। ठीक है, और इससे रोपण किया जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये साइज में 1 फुट होगा। ठीक है, आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह धान रोपण किया जाता है। ठीक है, तो ये धान की खेत है और ऐसा इस तरह में है। ठीक है, आप देख सकते हैं। थोड़ा स्पीड में भी करना था, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। रोहित छात्र पॉज करके ठीक है हाँ तो अभी हम धान्यारोपण किया है और हमने देखा था इस खेत में हमने धान रोया है। और हम यहाँ पे जो किसान हैं, यहाँ का जो खेती करते धान, इसको कितने दिन टाइम लगेंगे, कितना क्या ज़रूरत है, इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। कि नाम আপনার? দেবদাস কুন্ডু। ঠিক আছে, তো আপনারা তো ধান চাষ করছেন, তো ধানই তো আপনাদের প্রধান জীবিকা, তাই না? হ্যাঁ, ধানই আমাদের প্রধান জীবিকা। মোটামুটি কতটা চাষ করেন, কতটা জমি? মোটামুটি 7 থেকে 8 বিঘা। 7 থেকে 8 বিঘা। আচ্ছা, তো এই ধানটা এখন যে রোয়া হচ্ছে, এটা কতদিন পর কাটা হবে? এই ধরুন জুলাইয়ে লাগানো শেষ হয়ে গেল, মোটামুটি 3 মাস পর, 3 মাস পর। আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবরের প্রথম থেকে মোটামুটি ধান হয়ে যায়। তো এই ধানটা যখন লাগানো হয়েছে, মাঝে কখন কি সার দেবেন বা কোনো ওষুধ বা কীটনাশক দেওয়ার ব্যবস্থা হবে? এটা যখন জমিটা চষা হয়েছিল, লাঙ্গল দেওয়া হয়েছিল, তখন রাসায়নিক সার হিসেবে ডিওপি দেওয়া হয়েছিল। এরপর মাঝে যখন ধানটা লেগে যাবে পুরো, তখন একবার মাঝে দিন 15 কি 20 দিন পরে ইউরিয়া দিতে হবে রাসায়নিক সার হিসাবে। তারপর হয়তো যদি রোগ লাগলো তখন কীটনাশক হিসাবে স্প্রে করতে হয় মাঝে মাঝে। আচ্ছা, এই ধানটার নামটা কি? এই ধানটা যেটা লাগাচ্ছেন এটা আমন ধান। আমন ধান মানে স্বর্ণ বা কোনো স্বর্ণ ধান। স্বর্ণ ধান, ঠিক আছে। তো আপনারা দেখলেন এখানে যারা চাষি তাদের সঙ্গে আমরা কথা বললাম। তো ধান খেতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জল প্রচুর দরকার, এখন জলে বৃষ্টিপাতের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আর একটা জিনিস জানতে চাই, এটার জন্য কি কোনো সেচের ব্যবস্থা করতে হবে, পাম্প বা এই সময় সেচের ব্যবস্থা করতে হবে, না এরকম বৃষ্টির জলে হয়ে যাবে? মূলত এটা স্রোতের মধ্যেই জমিটা আছে আমাদের এই জায়গায়, যে জমিটা আছে স্রোতের মধ্যে একটা বাঁধ আছে, সেই বাঁধ থেকে বাঁধটা ভরে থাকে। যখন জল কমে যায় তখন বাঁধের থেকে পাম্প লাগিয়ে কিংবা বাঁধ কেটেও সেচ করা হয় যখন জল কমে যায়। বৃষ্টির জল হলে তো বাঁধের জলের প্রয়োজন হয় না। ঠিক আছে। আর আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমি অরিজিৎকে বলবো একবার চারিদিকে যেন ধান মাঠগুলো দেখায়, জলের পরিমাণ কি। জল তো এখানে সাফিসিয়েন্ট, সেচের কোনো দরকারই নেই। মূলত মৌসুমি বায়ুর জন্য এটা জল হয়ে থাকছে। মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ফলে যে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে তাতেই ধান চাষ হয়ে যায়, কোনো রকমের নলকূপ বা কোনো রকমের সেচের ব্যবস্থা করার দরকার নেই। এখন আমরা কাকার সঙ্গে একটু জিজ্ঞেস করি। হ্যাঁ কাকা, চাষ হয়ে গেল? চাষ হয়ে গেল এবছরের মতো? এবছরের মতো। ঠিক আছে, তাহলে ধান কাটার সময় তখন এটা ধান কাটবে। ঠিক আছে, চাষ তো এবছর খুব ভালো। হ্যাঁ, এখন মোটামুটি তো ভালো। আচ্ছা, বৃষ্টির জন্য তো কোনো অসুবিধা হয় নাই? এখন হয়নি, প্রচুর মেঘের জল। অন্য বছর তো জল চাষ হয় না ঠিক মতো, এবছর তো চাষের বৃষ্টি পাওয়া যায় না, বৃষ্টিপাত হচ্ছে।
ঠিক আছে চাষের অসুবিধা হ্যাঁ ঠিক আছে। তো এখানে দেখতে পেলেন যে পশ্চিমবঙ্গে মূলত যে চাষ হয় সেটা ধান চাষ করা হয়, ফাঁকা টাইমে কিছু অন্য চাষও করা হয়, যেমন গম, মসুর ডাল এ সমস্ত চাষ করা হয়। তো এই সাধারণত এই জমিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা মালভূমি অঞ্চলের জমি, ছোট ছোট মাঠ, এটা প্রগাঢ় কৃষিভিত্তিক হয়, यानी কি ইন্টেন্সিভ সাবসিস্টেন্স ফার্মিং হয়, এই জন্য জলের ব্যবস্থা আছে। আর এখানে প্রাকৃতিকভাবে যেটা মৌসুমি বায়ুর যেটা জল হয় সেটাতেই হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো দেখলেন, চলুন আমরা আগের দেখতে। और आज हम यहाँ पर आए हैं, ये है वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा, विलेज बड़ा लछीपुर। ठीक है, तो इस जगह में इसलिए आए हैं, हम धान की खेती किस तरह किया जाता है वो देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल जो है वो धान की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे धान की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में धान की खेती किया जाता है। और धान की खेती के लिए क्या भौगोलिक व्यवस्था है, क्या भौगोलिक कंडीशन होना चाहिए, यानी कि जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर फॉर पैडी कल्टिवेशंस, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको एक्चुअल एक व्यू मिले, ताकि किस तरह धान की खेती किया जाता है। आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे एरिया, ये एक धान की खेत है, और ये जो आल देख रहे हैं आल यानी कि बाउंड्री कहा जाता है, क्योंकि इससे इसलिए बनाए गए हैं ये आल ताकि पानी एक साइड से दूसरे साइड में चला ना जाए, क्योंकि ये एरिया प्लेन एरिया नहीं है। एक्चुअली धान की खेती के लिए तो प्लेन एरिया ज़रूरत होती है, लेकिन इस प्रकार जो एरिया है इसमें भी धान की खेती हो सकते हैं। धान की खेती करने के लिए जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होना चाहिए उसके बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, धान की खेती के लिए जो जियोग्राफिकल कंडीशंस ज़रूरी हैं वे सबसे पहले हैं ज़मीन समतल होना चाहिए, यानी कि प्लेन एरिया होना चाहिए। और अगर प्लेन एरिया नहीं हो पाए तो उसमें पानी का स्टॉक सफिशेंट रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो धान के पौधे हैं ये कम से कम 4 से 5 इंची पानी में ऑलरेडी डूबा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की पानी का सफिशेंट होना चाहिए, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए। इसके अलावा एलुवियल सोइल होना चाहिए, फर्टाइल सोइल होना चाहिए, और टेम्परेचर, हेवी टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल होना चाहिए। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर एंड एबव होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड एबव होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार एक भौगोलिक व्यवस्था, भौगोलिक कंडीशन अगर हो तो धान की खेती हो सकती है। ठीक है, और आप धान की खेती के लिए लेबर भी होना चाहिए, ताकि इसमें धान रोपण करने के लिए, कटाई करने के लिए, इसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से छिड़काव करने के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर ज़रूरत होना ज़रूरी है। क्योंकि जो पैडी कल्टीवेशन धान की खेती किया जाता है ये लेबर ओरिएंटेशन है, और यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मैनुअली काम किया जाता है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं ना, सब मैनुअली काम कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा कोई ट्रैक्टर ये सब चीज़ है नहीं, या मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से धान की खेती किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से धान की खेती के लिए मेनली भौगोलिक कंडीशंस जो है वो फर्टाइल सोइल, लेबर, क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायरमेंट, हेवी रेनफॉल एंड हेवी टेम्परेचर, ये ट्रॉपिकल रीजन में किया जाता है। और धान की खेती आप जानते हैं एशिया, मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, मेनली इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, फिलीपींस, इन सब देशों में धान की खेती बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में मुख्य जो फसल है वो धान। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अरिजीत के साथ मैं हूँ बलराम, बांकुड़ा, वेस्ट बंगाल।